Hello and welcome, dear students of class 12th. We have already started our class 12th physics portion for CBSE on this YouTube channel. Today in this video, we will continue with this chapter electrostatics, which we have already started with. Today we will discuss about relative permittivity, which is also known as dielectric constant, and we will discuss about Coulomb's law in vector form. These topics are very important for your class 12th examinations and they are frequently asked in boards. So we will discuss about relative permittivity as well as Coulomb's law in vector form. Let me just tell you what are the topics that we have already done so far. We have started with this chapter electrostatics. In fact, with this unit electrostatics, which I have split it into 5 different chapters. The first chapter is Coulomb's law, which we have already started, and we are doing that right now. We have discussed about electric charge, additive nature of charge, quantization of charge, then these two numericals, conservation of charge, properties of electric charge, Coulomb's law in electrostatics. This is a very important law which we have already discussed. Unit of charge, we have discussed 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 numericals on Coulomb's law. Make sure that you have watched both of the previous videos. Today is the third lecture on this chapter. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Relative permittivity किसको बोलते हैं? Okay, so now this formula you can see on the screen. There's a formula. This is something which you have already seen. Okay, this is the formula whose derivation we have already discussed. This is basically Coulomb's law. Okay, Coulomb's law का formula है which gives us the force, the amount of force that acts between two charges when they are kept in vacuum at a distance r from each other. Okay, so the formula tells us 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square is actually the force between these two charges q1 and q2. Okay, when both of the charges are kept in vacuum. ध्यान देना कि हम बोल रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस को हमने वैक्यूम या फिर हम एयर भी बोलते हैं, कई बार हम एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं या फ्री स्पेस में रखे हैं, देन ओनली दिस फॉर्मूला इज वैलिड. यहाँ पर हमने जो एप्सिलॉन नॉट यूज किया था, इसको हमने क्या बोला था? हमने बोला था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्या बोला था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तुम्हें याद होगा, देखो मैंने बताया था, 1 मिनट मैं दिखा देता हूं तुम्हें so that you can recall the things. This is Coulomb's law in electrostatics where we had discussed that epsilon naught is absolute permittivity of free space या फिर vacuum या फिर air. All right. तो coming back to this. अच्छा, अगर हम इस Q1 और Q2 को फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में न रखकर किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, ओके, से वाटर में रखते हैं, let these charges q1 and q2 be kept in some medium, say water. Okay, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? Formula for that force between q1 and q2 when the charges are kept in that medium, it is 1 by 4 pi epsilon. Now we are not writing epsilon naught, क्योंकि epsilon naught हम तभी यूज करेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम तभी यूज करेंगे जब हमारा मीडियम फ्री स्पेस हो यानी वैक्यूम हो. ठीक है, लेकिन जब हमारा मीडियम वैक्यूम न हो या फ्री स्पेस न हो या एयर न हो, कोई दूसरा मीडियम हो, तब हम यूज करेंगे 1 by 4 pi एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन यूज करेंगे. और फिर बाकी सब सेम है, q1 q2 upon r स्क्वायर. तो ये एप्सिलॉन क्या है? ये हो गया उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, where epsilon is absolute permittivity of medium of that medium. अच्छा, एप्सिलॉन नॉट हम तब यूज कर रहे थे जब हमारा चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, यानी एप्सिलॉन नॉट इज, दिस इज आल्सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, बट दिस वाज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो जब हमने फ्री स्पेस में रखा चार्जेस को, हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट यूज किया फॉर्मूला में. और जब हमने उसे किसी मीडियम में रखा, बहुत सिंपल है, तब हम वहां एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यों लिखेंगे? हम वहां लिखेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हमने एप्सिलॉन से डिनोट किया, सिर्फ एप्सिलॉन से. समझ में आ रहा है? सो एक ही चीज है, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट और किसी मीडियम में तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी.
अच्छा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, द फोर्स experienced by these two charges when they are kept in vacuum divided by the force experienced by the same charges when they are kept in that medium, okay, and the distance of separation is r when they are kept in vacuum, तब भी हमने इनको r डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा, मीडियम में भी रखा तो भी r डिस्टेंस के सेपरेशन में रखा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर डिवाइड करते हैं यानी F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 पाई भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी हमारे पास बच क्या रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by these two charges when they are kept in vacuum at a distance of separation r divided by the force experienced by the same charges when they're kept in a given medium. So that ratio is nothing but epsilon yani absolute permittivity of that medium divided by absolute permittivity of free space. This is something that we are obtaining. इस ही रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोला जाता है, जिसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। इस रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं चिल्ड्रन, एप्सिलॉन आर से। देखो नेक्स्ट स्लाइड में, तो इस एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने अभी अभी डिराइव किया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन आर, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव। तो ये जो रेशियो है ना, इसी रेशियो, कितना इजी है, कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी इस कांस्टेंट को, इस रेशियो को हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ the medium with respect to vacuum। बहुत सिंपल है, ठीक है। वैक्यूम के रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या रिलेशन है, उस मीडियम के परमिटिविटी का, वही तो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है। इस रेशियो को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका सिंबल तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, ई आर से डिनोट होता है, के से भी कई बार डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन आर लिखो या कैपिटल के लिखो, दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड हाउ डिड वी ऑब्टेन इट, दिस इज नथिंग बट एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, यानी एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, इसको किया, बाकी सारे टर्म्स तो कट गया, जो बचा हुआ है वो क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, दैट गेव अस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम with respect to vacuum। इसे हम dielectric constant of the medium भी बोलते हैं। What do we call it? Dielectric constant of this medium। ठीक है, तो कोई अगर तुमसे पूछे what do you mean by dielectric constant of the medium, या फिर what do you mean by relative permittivity of the medium, तो ये डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। इनफैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, और इसी को हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक डेफिनेशन बना दे तो एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा। Let us read the definition. The relative permittivity or dielectric constant of a medium may be defined as the ratio, किसका ratio? Ratio of the force between the two charges placed at a certain distance apart in air, air या vacuum दोनों कुछ भी बोल सकते हो, in air to the, नीचे क्या होगा, रेशियो के नीचे क्या होगा, to the force between the same two charges, वही दो charges placed at the same distance, वही distance r की distance placed in that medium। तो इन दोनों forces का ratio is the relative permittivity और dielectric constant of the medium। समझ में आ रहा है, कौन दोनों force, वो force दो जो experience किया जा रहा है, जिस force को experience किया जा रहा है by the charges when they are placed in air at a certain distance, divided by the force which is experienced by the same two charges when they are kept at a same distance apart in a given medium। तो उन दोनों फोर्सेस को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं।
ठीक है। तो तुम्हें डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन लिखना, और बेसिकली ये क्या होता है, ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम होता है, एंड दिस इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियन, एंड एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इन दोनों एब्सोल्यूट परमिटिविटीज को हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सिंपल है, वेरी सिंपल है। ओके, नाउ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा। वेक्टर की नॉलेज हमें होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ओके, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर एक फोर्स लग रहा है F, फोर्स है 10 न्यूटन, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो हम इस डायरेक्शन को, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। किसका? यूनिट वेक्टर का। ये तुम्हें याद होगा, क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ओके, और कैसे हम उसे लिखते हैं, एक छोटा सा कैप यूज करते हैं। जैसे यहां देखो, इस आर के ऊपर, R12 के ऊपर एक छोटा सा कैप है। ये कैप इंडिकेट कर रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो जैसे यहां पर इस फोर्स के इस डायरेक्शन को, सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए अगर हम एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे एफ कैप यूज करें, एफ कैप, यहां पर देखो एफ कैप, तो इसका मतलब है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और एफ कैप यानी डायरेक्शन इस एरो से हमें पता चल रहा है, एफ कैप से हमें पता चल रहा है। तो कभी भी हम डायरेक्शन को लिखेंगे वेक्टर नोटेशन में तो उसे हम यूनिट वेक्टर यानी कैप लगाकर हम उसे लिखेंगे। ठीक है, उसका डायरेक्शन पता चलेगा हमें। अच्छा, अब देखो यहां पर दो चार्जेस हैं। कूलम्स लॉ तुम्हें याद होगा, Coulomb's law तुम्हें याद होगा। Here we have two charges. At point A we have a charge Q1. At point B we have a charge Q2. Okay, they are separated by a distance R. अच्छा, अब दो डायरेक्शंस हैं। देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो R है, लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि पॉइंट B पॉइंट A से कितने दूर पर है, लिसन, हाउ मच इज पॉइंट B फार अवे फ्रॉम पॉइंट ए, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ए से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे, और ए से हम ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, और बी तक पहुंचेंगे और डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो डिस्टेंस तो आर होगा, लेकिन हमने किस डायरेक्शन में मूव किया, कैन यू सी द एरो, ए से हमने चला बी के तरफ। तो जब हम आर, इस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं कि बी ए से कितने दूर पर है, हमने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर आया, डिस्टेंस को मेजर किया, तो हमने ए से बी के तरफ चला। द डायरेक्शन ऑफ द आर इज फ्रॉम ए टू बी, और इस डायरेक्शन को हम R12 कैप से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां देखो, ये जो R12 कैप है, ये जो R है, डिस्टेंस है, उसके डायरेक्शन, उस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन हो तभी वो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डिस्टेंस है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो r है, लेकिन डायरेक्शन अगर हम मेजर करें तो Q1 से अगर Q2 के तरफ हम जा रहे हैं, उस डायरेक्शन को बताने के लिए R के ऊपर कैप लगा दिया जाए, और हमने R12 लिखा। 12 मतलब 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है, तो हमने 1 से चलना स्टार्ट किया, 1 से चलकर हम 2 तक जा रहे हैं। 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है, तो हम उसे बोलेंगे R1 से 2 की डिस्टेंस, मतलब 1 2, और वो डिस्टेंस हमने मेजर किया इस डायरेक्शन में मूव करके A से B। तो डायरेक्शन को बताने के लिए इस एरो को देखो, इस डायरेक्शन को सिंबॉलिक नोटेशन में हमने रिप्रेजेंट किया R12 कैप लगा के। सेम वे में अगर हम उल्टी तरह बात करें कि पॉइंट बी से कितनी दूरी पर पॉइंट ए है, सो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, ए इज, हाउ मच ए इज फार फ्रॉम बी, तो हम बी से चलना स्टार्ट करेंगे और ए की तरफ आएंगे।
the distance will be same, but the direction of how we measured means the displacement का direction is reversed. तो जब हम B से A के तरफ जा रहे हैं, उस डायरेक्शन को हमने इंडिकेट किया यूजिंग द सिंबल R21, यानी पॉइंट 2 से चलकर हम 1 की तरफ गए और उस डायरेक्शन को हमने यूनिट वेक्टर ऊपर कैप लगा दिया R21 से डिनोट किया. यू कैन सी द एरो, इट इज इंडिकेटिंग दैट वी हैव मूव्ड, द डायरेक्शन इज फ्रॉम Q2 टू Q1, मतलब 2 से 1 तक गए हैं. ओके, तो ये दो बस डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर्स हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इस फोर्स को हमने F12 से इंडिकेट किया है. F12 का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. ओके, एंड F12 का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. ओके, तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होता है. एक फोर्स देखो लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा जो F12 है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21. ये जो दो वेक्टर्स के साइड में हमने मॉड लगा दिया है, क्लास 11th में पढ़े हो कि जैसे हम यहाँ ऐसे मॉड लगा देते हैं, इसका मतलब कि उस वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ F12, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब F12 मतलब द फोर्स विच Q1 इज एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू Q2, एंड F21 का मतलब द फोर्स विच Q2 इज एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू Q1. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है. अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में. तो मैग्नीट्यूड ऑफ F12, इसको कैसे लिखेंगे? F12 लिखेंगे और साइड में मॉड लगा देंगे. तो मॉड लगा दिया मतलब कि ये अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21. इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है. ओके, तो चलो क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ते हैं. कंसिडर, इसको मिटा देते हैं. कंसिडर दैट टू लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, या फिर Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव. दे आर लाइक चार्जेस आर प्रेजेंट एट पॉइंट्स A and B in vacuum at a distance r apart. The two charges will exert equal repulsive force on each other. Equal मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, लेट F12 be the force on charge Q1 due to Q2, isn't it? This is what I have said. And F21 is the force experienced by charge Q2 due to Q1 as it is shown in the figure. फोर्स का डायरेक्शन भी क्लियरली दिख रहा है कि Q1 को रिपेल किया जा रहा है Q2 के द्वारा, और यहां पर भी F2 का डायरेक्शन देखो, Q2 को रिपेल किया जा रहा है Q1 के द्वारा. ओके, द फोर्सेस आर opposite in direction, going far away from each other. Both of the charges are repelling each other. क्यों रिपेल कर रहा है? क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है. हमने शुरू में ही बोल दिया कि दोनों लाइक चार्जेस है. वैसे ये जरूरी नहीं है कि ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ये सिर्फ लाइक चार्जेस के लिए ही हो, ये अनलाइक चार्जेस के लिए भी वैलिड होगा. उसमें बस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. लेकिन हमें एक्सप्लेन करने के लिए किसी एक केस को तो इमेजिन कंसिडर करना है, तो हमने ये केस कंसिडर किया कि दोनों चार्जेस लाइक नेचर के. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अनुसार हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r². और इन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि दीज चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम. देखो लिखा हुआ है पॉइंट्स आर इन वैक्यूम. तो वैक्यूम में अगर है तो इसलिए हम यहाँ ε0 यूज कर रहे हैं. ओके, और फोर्स का मैग्नीट्यूड को हमने F12 का मैग्नीट्यूड बोलो चाहे F21 का मैग्नीट्यूड बोलो, दोनों तो सेम है, एंड दैट इज नथिंग बट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r². दिस वी हैव डन, वी हैव डिराइव्ड इन कूलम्स लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेशन कर लिया है, तुम्हें याद भी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किया है, isn't it? आगे अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये तो फोर्स का बस मैग्नीट्यूड हो गया. दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. कूलम्स लॉ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बताता है. लेकिन अब हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. मतलब हमारे कूलम्स लॉ में अब डायरेक्शन की भी बात होगी, अब डायरेक्शन की भी बात की जाएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की नहीं. अभी तक हमने कूलम्स लॉ को सिर्फ स्केलर नोटेशन में पढ़ा है, स्केलर फॉर्म में पढ़ा है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की हमने बात की है. लेकिन अब हम इस F12 का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन का भी बात करेंगे. सिमिलरली F21 का भी अब हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ F21 भी होगा. तो कैसे? लेट
R12 ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, R12 का मतलब इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। R12 बी द यूनिट वेक्टर विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। Q1 से Q2 के तरफ जो वेक्टर पॉइंट कर रहा है वो है R12 कैप। एंड R21 कैप इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। Q2 से Q1 के तरफ, Q2 से Q1 के तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर पॉइंट कर रहा है? R21 कैप। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर्स होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन होता है इसमें मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है। ओके, as the force vector F12 is along the direction of unit vector R21। अब ध्यान से देखो, यहां पर इसमें अगर हम F12 को देखें, F12 किसके डायरेक्शन में लग रहा है? किस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में F12 है? F12 का डायरेक्शन ऐसे है ना, और इस R21 का डायरेक्शन भी ऐसे, R21। तो F12 का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड R21 कैप का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसीलिए F21 का जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलेगा F12 का जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलेगा R21 कैप के डायरेक्शन से। और F21 को देखो, F21 को देखो, इसका डायरेक्शन ऐसे है और R12 का डायरेक्शन भी राइट साइड में। तो F21 के डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम R12 कैप का यूज करेंगे। इस फोर्स के डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? मैं फिर से एक बार बताता हूं, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। F12 इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड का तो हमें पता है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है? F12 का डायरेक्शन ऐसा है और R21 कैप का डायरेक्शन भी सेम है, इसी साइड में है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो F12 के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम R21 कैप का यूज करेंगे और F21 इस फोर्स, द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इस फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है एंड डायरेक्शन R12 बता रहा है हमें, R12 का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है। क्लियर हो गया? वही चीज यहां लिखा हुआ है। तो जब हम F12 को इंडिकेट कर रहे हैं, अब हम वेक्टर नोटेशन में इंडिकेट कर रहे हैं, F12 लिखा और हमने यह मॉड नहीं लिखा, यहां पर हमने ऐसा मॉड नहीं लिखा, अनलाइक यहाँ पे हमने मॉड लिया था, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी, लेकिन अभी मॉड नहीं है, मतलब कि F12 वेक्टर है, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 by R², और डायरेक्शन हमने लिख लिया F12 का डायरेक्शन कौन बताएगा? R21 कैप, उसका डायरेक्शन भी लिख दिया। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का ये पार्ट है मैग्नीट्यूड और ये पार्ट है डायरेक्शन। सिमिलरली F12 को यहां पर 21 होगा। सिमिलरली F21 को हम कैसे लिखेंगे? F21 को हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। ये तो F21 का मैग्नीट्यूड हो गया, जो कि बिल्कुल सेम है, F12 के जैसा ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन इस बार R12 बता रहा है, क्योंकि F21 का डायरेक्शन R12 कैप बता रहा है। तो यही हो गया हमारा, बहुत ही इजीली हमने क्या किया, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये एग्जाम्स में पूछता है, इसका डेरिवेशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, ये 12 नहीं है, ये 21, 12 का तो हमने यहाँ लिख लिया है, और अब हम F21 का लिख रहे हैं। तो ये F21 हमें दे रहा है R12 कैप दिस। तो हमने दोनों फोर्सेस को हमने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अलग अलग था, तो अलग अलग डायरेक्शन हमने यहाँ लिख लिया। समझ में आया? कुछ नहीं है, हलवा है। तो इसका फायदा क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? क्यों हमने किया? देखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमें दो चीजें बताती है। एक तो मैग्नीट्यूड बताता ही है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है, और ये बता रहा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म दैट द फोर्सेस F12 and F21 are equal and opposite। ये डायरेक्शन से ही हमें पता चल रहा है
कि इन यूनिट वेक्टर्स का डायरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि F12 का क्या डायरेक्शन है, F21 का क्या डायरेक्शन है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड जो है 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर ये दोनों में है, यानी मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट डायरेक्शंस R12 कैप है तो इधर R21 कैप है, डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। इससे हमें ये पता चल रहा है क्योंकि R21 इज एक्चुअली माइनस R12 कैप, माइनस बता रहे हैं डायरेक्शन, तो R21 का जो डायरेक्शन है वो इक्वल नहीं है R12 के, ऑपोजिट है, लेकिन अगर हम माइनस लगा दें तो डायरेक्शन चेंज हो गया। R21 का डायरेक्शन कुछ ऐसा देखो, R21 का डायरेक्शन कहाँ गया भाई, हाँ इधर, R21 का डायरेक्शन इस तरफ है, सी टुवर्ड्स द लेफ्ट, R21 का डायरेक्शन, R21 कैप का डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है, लेकिन जैसे मैं इसको माइनस R21 कर दूंगा, -1 R21 कैप कर दूंगा, माइनस लगा दूंगा, तो ये डायरेक्शन फिर टुवर्ड्स द राइट हो जाएगा, डायरेक्शन घूमकर इधर हो जाएगा। ओके, तो जो कि बिल्कुल किसके डायरेक्शन के इक्वल हो गया, R12 के डायरेक्शन के इक्वल हो गया। R12 कैप का भी डायरेक्शन ऐसा है एंड माइनस R21 का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, यही चीज यहां लिखा गया है। यानी हम F12 को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, F12 के जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में R21 कैप के जगह हम ये लिख सकते हैं माइनस R12 कैप, क्योंकि R21 इज नथिंग बट माइनस R12, तो यहां हमने वही किया, माइनस R12 कैप लगा दिया 21 कैप के जगह, ठीक है। और इस माइनस को हम आगे लेकर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ सामने, इस माइनस को हम सामने लेकर आ जाए तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएगा, -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप, ऑलराइट, इसके इक्वल है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि R12 के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है F12, ये बता रहा है R12 कैप के डायरेक्शन के ऑपोजिट लग रहा है F12 कैप। इससे हमें यह पता चल रहा है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मतलब दोनों इक्वल तो है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। +12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, जो कि फिगर में भी हमें दिख रहा है, और अब हमने वेक्टर फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया तो भी हमें सेम चीज हमें दिख रहा है, ऑलराइट। और जो दूसरा फैक्ट है जो हमें इस वेक्टर फॉर्म से पता चला वो है, it follows that electrostatic force between the two charges is a central force, ये फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, that means it acts along the line joining the two charges। यहाँ पर ये इतनी सारी हमने बातें की, कूलम्स लॉ लगाया, वेक्टर फॉर्म में किया, ये दोनों फोर्सेस इसी लाइन पर एक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो, है ना, तभी इतनी सारी बातें जो हमने किया वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसी लाइन के ऊपर ये F12 फोर्स भी एक्ट हो रहा है, F21 फोर्स भी एक्ट हो रहा है, भले ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज दिस सिंगल लाइन, ऑलराइट। तो ये भी बात हमें इस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से पता चला कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन से हमें पता चला कि भले दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, दे एक्ट along the line joining the two charges, जो लाइन इन दो चार्जेस को ज्वाइन करता है उसी लाइन पर ये दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। आई होप वट एवर वी हैव डिस्कस टूडे थिंग्स आर क्लियर। फिर अपकमिंग वीडियो में, अपकमिंग लेक्चर में मैं इस चैप्टर को और आगे लेकर जाऊंगा। टिल देन वट एवर वी हैव डन सो फार उसको प्रैक्टिस करो चिल्ड्रन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।